Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, today we will discuss class 10 biology. Okay students, in lecture 1 we will discuss the introduction to coordination and control, types of coordination and components of coordinated action. And in lecture 2 we will discuss the introduction to human nervous system, neuron, divisions of the nervous system, in which we will discuss the part of the brain, forebrain in detail. And then in lecture 3 we will discuss the midbrain, hindbrain, spinal cord, peripheral nervous system and reflex action. In lecture 4 we will discuss the structure of eye, disorders of the eye and contribution of Muslim scientists. In lecture 5 we will discuss the parts of ear, the process of hearing, and ears maintains the balance of the body. It means how ear maintains the balance of the body. We will discuss it in lecture 5. In lecture 6 we will discuss the endocrine system, pituitary gland and thyroid gland. In lecture 7 we will discuss the parathyroid glands, adrenal glands, pancreas and gonads. In lecture 8 we will discuss the feedback mechanism and disorders of nervous system. In lecture 9 we will discuss the review questions of chapter 12. Chapter number 12, coordination and control. Okay students, in lecture 1 we will discuss the introduction to coordination and control. Then we will discuss the types of coordination. Then we will discuss the components of coordinated action. It means how many components are involved in coordinated action. We will discuss it today. So there are the 5 major components which are involved in coordinated action. First one, stimuli. Second one, receptors. Third one, coordinators. Fourth one, effectors. And at the end we will discuss the 5th component of coordinated action, which is response. So our learning journey be like. Okay students, today topic is introduction to coordination and control. So students, before we will discuss our main topic, you must have knowledge about the term coordination. What is coordination? Now we will discuss its background information regarding the coordination. So students, the tissues and the organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other. They work together, performing their many tasks as the needs of the whole body. This means that these activities are coordinated. So students, ये जो आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उनमें जो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, वो एक साथ वर्क करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो एज अ यूनिट की फॉर्म में क्या कर सके, वर्क परफॉर्म कर सके. दिस मीन दैट दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड. इट मीन्स कि उसमें उनमें जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती हैं. उनमें जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, वो कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में एक साथ वर्क करते हैं. देन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? Basically, a process by which tissues and organs of a multicellular organism work together in order to help the organisms to respond its environmental change. It means कि coordination में जो tissues होते हैं और organs होते हैं multicellular organisms की body में, वो एक साथ work करते हैं. They work together. Then ये एक साथ वर्क करते हैं और देन एनवायरमेंटल में जितने भी चेंजेस आते हैं उनमें क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस इट्स एग्जांपल. लाइक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज, one familiar example of coordination is the way in which muscles working together during movement. As you can see in the diagram, जब आप रन कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो देन आपके जो मसल्स होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, वो एक साथ वर्क करते हैं. तो देन आपकी जो बॉडी है वो मूवमेंट शो करती है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस इट्स सेकंड एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग ओवर हैंड्स and fingers work in collaboration with our muscles, eyes, thoughts, etc. and then very intricate
मूवमेंट्स रिजल्ट। इट मीन्स कि जब आप कुछ लिख रहे होते हो, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, तो देन आपके क्या इन्वॉल्व होते हैं उसमें, हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं, फिंगर्स के जो मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आपकी आईज इन्वॉल्व होती हैं, आपकी थॉट्स इन्वॉल्व होती हैं। इट मीन्स कि सारी जो थिंग्स होती हैं इनमें कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन से देन क्या होता है, आपकी जो भी मूवमेंट्स है राइटिंग की वो शो होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। Now we will discuss the types of coordination. So students, basically there are two types of coordination in organisms. Like first one, nervous coordination, and the second one is chemical coordination. So what is nervous coordination and chemical coordination? Basically nervous coordination, it is brought about by the nervous system. Nervous coordination nervous system के through होती है जिसमें आपके brain and spinal cord involved है, while chemical coordination it is brought about by endocrine system. chemical coordination endocrine system के through होती है जिसमें आपके endocrine glands involve होते हैं। Okay students, our next topic is coordinated action. As I have told you earlier about the components of coordinated action, basically a coordinated action has 5 major components. It means आपकी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है वो 5 मेजर कंपोनेंट्स के थ्रू होता है, उसमें 5 मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। नाउ वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। लाइक फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन इज स्टिमुलस, सेकंड वन इज रिसेप्टर, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेटर, fourth one is effector, and the fifth one is response. Okay students, these are the 5 major components of coordinated action which are involved in coordination. आपकी बॉडी में जो organs, tissues, muscles ये एक साथ एक यूनिट के तौर पे जो वर्क कर रहे हैं उनमें आपकी ये 5 major components involve होते हैं। Okay students, now we will discuss each of them in detail. Components of coordinated action. Now we will discuss the components of coordinated action in detail. So students, one by one we will discuss each of the component of coordinated action. Like first one is stimuli. What is stimuli? Basically we can define a stimulus as any change in environment, external or internal, which can provoke a response in organism. अभी जो स्टिमुलस होता है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं। मीन्स के एक्सटर्नली या इंटरनली जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में और इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिजम्स उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टिमुलस है ये ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और देन ऑर्गेनिज्म इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एग्जांपल्स। अब हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है वन बाय वन। बेसिकली जिसकी एग्जांपल्स में है वो टच है, टच इज अ स्टिमुलस, हीट इज अ स्टिमुलस, कोल्ड is a stimulus, pressure is a stimulus, sound waves are stimulus, then presence of chemicals are stimuli, then light is a stimulus, and microbial infections are the stimuli. It means these are the examples of the stimulus. ये स्टिमुलस हैं, ये चेंजेस हैं आपकी बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड हैं जो कि आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है और देन इसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स शो करती है इन्वायरमेंट में. Okay students, now we will discuss the second component of coordinated action, receptors. Okay students, before I will discuss its definition, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यूज या सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन चेंजेस को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. सो इनको रिसेप्टर्स कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन. The organs, tissues or cells which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptors. अब आपकी बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप, स्पेसिफिक टाइप के स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. अब स्टिमुलस क्या होता है, लाइक आपकी साउंड भी हो सकती है या कि टेम्परेचर भी हो सकता है
ये आपके स्टिमुलस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स ऑर्गन्स उनको रिसीव करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इट्स एग्जांपल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल is sound waves are detected by ears. So in this example, sound waves are stimuli and ears are receptor. It means कि जो sound waves हैं उनको आपके ear detect करते हैं. Now we will come towards its second example. अब इसकी second example में क्या है? Light is detected by eyes. It means के light is a stimulus and eyes are receptors. So आपकी eyes जो हैं वो light stimulus को क्या करती हैं? Receive करती हैं. Now we will discuss its third example. Like chemicals in air is detected by nose. So in this example, chemicals are stimuli and nose is a receptor, which is organ which detects the chemicals in air. So this is the information regarding the receptors. Okay students, now we will discuss the third component of coordinated action, coordinators. Basically, what are coordinators? These are the organs that receive information from receptors and send messages to particular organs for proper action. It means कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं और ये मैसेजेस सेंड करते हैं आगे कोऑर्डिनेटर्स को. तो कोऑर्डिनेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं रिसेप्टर्स के थ्रू और आगे जो मैसेजेस हैं उनके सेंड कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स को फॉर प्रॉपर एक्शन, ताकि आपकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर सके. फॉर एग्जांपल, इफ आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो आप नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में चेक करेंगे कोऑर्डिनेटर्स के इनमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, like in nervous coordination, brain and spinal cord act as coordinator. It means कि nervous coordination में आपकी जो receptor से information होती है वो brain और spinal cord में जाती है जो कि coordinator के तौर पे act करते हैं. Then अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं केमिकल कोऑर्डिनेशन से, तो देन केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर. इट मीन्स कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर दी डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनके अंदर डक्ट्स नहीं होती. ये डायरेक्टली अपने हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर एंटर करते हैं. इनके अंदर ट्यूब्स के थ्रू हार्मोन्स ब्लड में एंटर नहीं होती, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं हार्मोन्स. ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका सेकेंड डिस्कस करूं फीचर, देन इन नर्वस कोऑर्डिनेशन जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स. इट मीन्स के आपके जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो कि कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, इनमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का. वो बेसिकली इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं और आगे ट्रांसमिट करती हैं आपके बॉडी ऑर्गन्स में. व्हाट अबाउट इन केमिकल कोऑर्डिनेशन? अभी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड सेंड इट बाय स्क्रीटिंग हार्मोन्स. अब ये केमिकल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब ये केमिकल्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिटेक्ट करते हैं और देन उसके अकॉर्डिंग बॉडी में क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं, स्क्रीशन रिलीज करते हैं, लिक्विड रिलीज करते हैं, जिनके थ्रू आपकी बॉडी आगे फर्दर क्या करती है? फंक्शन परफॉर्म करती है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कोऑर्डिनेटर्स. Okay students, now we will discuss the fourth component of coordinated action, effectors. So what are effectors? These are the parts of body which receive messages from coordinators and produce particular responses. It means कि आपकी बॉडी में parts present होते हैं, ऐसे organs present होते हैं जो कि effector के तौर पे act करते हैं. अब ये organs जो parts होते हैं बॉडी के, ये messages receive करते हैं from coordinators.
कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंडोक्राइन सिस्टम, ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इनसे मैसेजेस रिसीव करते हैं और देन क्या शो कर रहे हैं? रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं और आपकी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टर्स. We will discuss the examples of effectors in nervous coordination and chemical coordination in detail. Okay students, in nervous coordination, neurons carry messages from coordinators, brain and spinal cord to muscles and glands which act as effectors. It means कि nervous coordination में neurons messages carry करते हैं from coordinators. What are neurons? Basically neurons are nerve cells. ये नर्व सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो मैसेजेस हैं ये कोऑर्डिनेटर तक लेके जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से. देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जब ये मैसेजेस लेके जाते हैं, देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो मैसेज होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही मसल्स एंड ग्लैंड्स में ट्रांसमिट होती है. ओके, ये मसल्स एंड ग्लैंड्स जो होते हैं ये इफेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं इन nervous coordination. What about in chemical coordination? In chemical coordination, particular hormones carry messages from coordinator to targeted tissue. For example, chemical coordination जो कि आपकी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है, उसमें जो हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वो मैसेजेस कैरी करते हैं. कहां से मैसेज कैरी करेंगे? कोऑर्डिनेटर से. अब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वहां से मैसेजेस कैरी करते हैं और इसको टारगेट टिश्यूज तक लेके जाते हैं. अब ये जो टारगेट टिश्यूज हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वो एज ए इफेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं. अब फॉर सम हार्मोन्स, अब जो कुछ हार्मोन्स आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं, उनके लिए नेफ्रॉन्स जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का, एंड बोन्स, वो एज ए इफेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं. And for many hormones, liver act as effectors. So, students, this is the information regarding the effectors. Okay, students, now we will discuss the fifth component of coordinated action, response. So, what is response? Basically, on receiving the message from coordinators, the effector performs action and this action is called response. For example, कोऑर्डिनेटर्स जो है मैसेजेस रिसीव करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन ये मैसेज आगे इफेक्टर्स में ट्रांसमिट होता है जो कि एक्शन परफॉर्म करते हैं. अब ये जो इफेक्टर्स एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंग, अब ये जो एक्शन होता है, दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करें तो यहाँ पे आपके पास 2 फेमिलियर एग्जाम्पल्स हैं रिस्पॉन्सेस की, लाइक pulling our hand away from something very hot. For example, अगर आप अपना हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे रख दें, लाइक कैंडल, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कैंडल के ऊपर आपका हाथ अगर अब्रप्ट अनइंटेंशनली आ जाता है, तो देन आप अब्रप्टली अपना हैंड जो है वो पुल कर देते हो, अवे कर लेते हो फ्रॉम फ्लेम. सो दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स. अब ये जो आप पुलिंग है हैंड की अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट, दैट इज कॉल्ड दी रिस्पॉन्स. ये आपकी बॉडी ने एक्शन परफॉर्म किया और ये एक्शन को आप क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड एग्जांपल, लाइक मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट. एज यू नो दैट के जो सनफ्लावर होता है उसकी जो मूवमेंट होती है, पूरी प्लांट बॉडी की जो उसकी मूवमेंट होती है, वो डायरेक्शन सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है. जहां सन होता है वहां पे सनफ्लावर की मूवमेंट होती है. अब ये जो मूवमेंट है सनफ्लावर की अकॉर्डिंग टू दी सन, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स. Okay students, up till now we have discussed the components of coordinated action. Now we will discuss the flow sheet diagram of coordinated action. अब हमने पाथवे चेक करना है नर्व इम्पल्स का कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स में ट्रांसमिट होती है, देन उसकी डायरेक्शन हमने डिस्कस करनी है. फॉर एग्जांपल लाइक स्टिमुलस जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं. आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर्स वो रिसीव करते हैं. देन ये जो मैसेजेस होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेटर में ट्रांसमिट होती है. अब कोऑर्डिनेटर जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होते हैं,
ये इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू किस में ट्रांसमिट कर रहे हैं, इफेक्टर्स में। मींस के इफेक्टर्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स थ्रू न्यूरॉन। अब ये जो इंफॉर्मेशन रिसीव करें इफेक्टर, इसके अकॉर्डिंग ये एक्शन परफॉर्म करेंगे एंड दैट एक्शन इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। सो स्टूडेंट्स ये सारा पाथवे है नर्व इम्पल्स का कि किस डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स जो है वो फ्लो करती है।